Hi friends, we have started the numericals of chapter number 2. In that we had completed already the exercise numericals and we have completed almost all illustrations. You would say no, we did few of them. No, let me remind you that illustration number 2.1 was quite simple. I left it on you, self practice. Illustration 2.2 is same as exercise ka sum number 2.1, the very first we had taken in exercise, finding zero potential in a system of two charges, point of zero potential. One was inside the between the charge and one was outside the charge. It's exactly similar to that. 2.3, it's also more a theoretical one, so I left it out. Then 2.4 we did 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 was again theoretical. This we have already done in the previous lecture. 2.8 and 2.9 also done in the previous lecture. Then remaining 2.10 is same as exercise ka last sum, that is 2.11. Exactly same. We have taken 2.11 and then 2.27. If you remember, one uncharged capacitor connected to a fully charged capacitor, how much is the energy loss? Both of them, both C1 and C2 are same. वो वाला सम था, ये C1 not equal to C2 वाला. 2.10 is also same. C1 equal to C2 वाला सम है, exactly same. So that completes the illustrations. Now we will do three of the additional exercise sums which I would like to do on the board, and later on you have to practice the others by yourself. Okay, so let's go for illustration number, exercise ka sum number 2.12, which is an additional exercise first sum. Just pause the video and go for studying it. Now sum number 2.12 of exercise. You might have read the question. The question says that there is a charge Q which is 8 millicoulomb. Now this charge is the source charge. It has its own electric field. In this electric field, a charge small q, which is given as negative 2 into 10 raised to negative 2 into 10 raised to power minus 9 nanocoulomb charge is given. This charge is taken from a point P having coordinates 0, 0, 3 centimeter. From P, यानी कि starting point P point, position vector R1 bar is 0, 0, 3 centimeter. It is taken to point Q having position vector 0, 4, 0 centimeter. ये हो गया suppose point Q where it is coordinates are 0, 4, 0 centimeter. Here also said that the charge small q is brought from P to Q via another point R, which is 060 centimeter. यानी बीच में पॉइंट आर आ रहा है, हम लोग इसका पोजीशन आर डैश बार बोल देते हैं, एंड द पोजीशन आर डैश बार इज 060 centimeter. We are said that if electric field of capital Q is there, that is the source charge. In that electric field, a charge small q is moved from P to Q. How much is the work done? We have to find out. How much is the work done? I hope the question is clear to you. Now, work done to move a charge from one point to another point in the electric field is given as Q into potential difference across the 2 points. As well as Q into potential difference across the 2 points. ये potential difference क्या होगा? So we are moving from P to Q via R. Now we very well know that in case of electric field, the work done does not depend on the path followed. It depends on the initial and final position only. कहाँ से जा रहा है? It doesn't matter. Starting point and ending point is important. If it would have gone through R, अगर वो यूं भी आता तो भी it doesn't matter. If it would have come like this also, then also no problem. If it would have come like this also, then also no problem. The work done would be same. क्यों? क्योंकि work done depends only on the initial and the final position, not on the path forward. तो इसलिए बीच में ये R का हमारे लिए कोई काम नहीं है. तो तुम बोलोगे सर ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है? जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड. इससे ध्यान रखें, in the numerical there might be some extra data given. It is not necessary that every data given in the numerical has to be used. We have to use only those data which is important for us. Now यहाँ पे P से Q आ रहा है, तो potential difference कितना होगा? V potential difference between P and Q, that is VQ minus VP. अब तुम बोलोगे potential कैसे ढूंढना है? तो potential का फॉर्मूला याद होगा, V equal to KQ upon R square. KQ upon R. अब at point P चाहिए,
तो P का डिस्टेंस एट पॉइंट Q चाहिए, तो KQ अपन पोजिशन ऑफ आर सेकंड Q पॉइंट। अब पोजिशन क्या आएगा इसका 0 0 3 है, तो ऑब्वियसली नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ R1 डिस्टेंस विल बी 3 सेंटीमीटर and that is 3 into 10 raised to minus 2 meter. Similarly R2 वैल्यू क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड उसका 4 into 10 raised to minus 2 meter। याद है ना, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही मेथड यूज किया। एक ही कोऑर्डिनेट है तो वही आ जाएगा सीधा। नाउ यू गेट VP हियर, हियर Q you know very well, value of K constant 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये K का वैल्यू। Okay, then you have Q, then you have R1, V1 मिल जाएगा, then it is KQ upon R2, V2 मिल जाएगा, VP मिला VQ मिला, दोनों को यहाँ रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, एंड फिर वर्क डन is Q into डेल्टा V, just mention that's all। ये हो गया सम नंबर 2.12। as there is an application of work done, इसलिए इसको एडिशन में डाला हुआ है क्योंकि ये थोड़ा लेवल हाई जाता है अपने लोकल बोर्ड से। ओके तो ये हो गया 2.12, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट वी स्विच ओवर टू एक्सरसाइज का नंबर 2.13, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यू माइट हैव रेड द नंबर 2.13। अब 2.13 में दिया हुआ है क्यूब, क्यूब का साइड लेंथ b दिया हुआ है। अब इस क्यूब में बोला है एट ईच वर्टेक्स देयर इज अ चार्ज q ऑन ईच वर्टेक्स, so we can clearly say that it's a symmetric charge distribution। At each vertex the charge is q, and what we are said is to find the resultant electric field at the center, let's say O, to find at point O, that is the center of the cube, we have to find the resultant potential and resultant electric field intensity। दो चीजें ढूंढना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में तो यू आर क्वाइट क्लियर नाउ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने लिया हुआ है कि व्हेन देयर इज अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, equal distance and equal value of charge, then resultant electric field is always zero, क्योंकि vertically opposite points will cancel each other, the electric field at point O will cancel each other। इसलिए as we can, in short and sweet we can say, as symmetrical charge distribution about point O, resultant electric field intensity at center would be resultant electric field intensity एट सेंटर इज 0। तो वो तो हो गया खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम। नाउ पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिजल्टेंट 0 हो गया, तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। नो नॉट, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, वैल्यू इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, विल कैंसिल ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन कैंसल्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट पोटेंशियल इज प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल के लिए क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट ड्यू टू एनी वन वर्टेक्स विल बी KQ upon R at the center, where R is the distance of that point from the center, R is the distance of that point from the center। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए उसके बारे में सोचते। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू एनी वन वर्टेक्स एट सेंटर विल बी KQ upon R, where Q is the charge at the vertex, R is the distance from the vertex। We can find that all the 8 charges in the cube, 4 bottom में and 4 top पे, total 8 charges। Every charge has the same value, Q सबके लिए same है। Every charge is at an equal distance from the center of the square at this cube, so R भी same है सबके लिए। So total potential at center would be V will be equal to 8 times V dash, क्योंकि हर एक का ऐड होगा पोटेंशियल, सारे equal charge and equal distance पे, and therefore this will be 8 times KQ upon R। अब ये R ढूंढते हैं, R क्या होगा? तो मैंने 11 में भी पढ़ाया था, अब फिर से एक बार याद करा रहा हूं। फॉर द क्यूब, ये खास ध्यान रखें, फॉर द क्यूब इफ साइड हैज अ लेंथ L, साइड हैज अ लेंथ L, देन फेस डायगोनल विल हैव अ लेंथ L√2। ये याद होगा शायद। फेस डायगोनल यानी ये हो गया किसी भी फेस का डायगोनल, यानी सपोज ये वॉल हो गई तो ये फेस डायगोनल, ये कितना होगा L√2। व्हाट अबाउट द बॉडी डायगोनल? क्यूब का बॉडी डायगोनल पूरी बॉडी के बीच में से विल बी, डायरेक्टली लेते हैं L√3, ये याद रखना है हमें खास। एंड ये एप्लीकेशन हम लोग कई सम्स में
कई चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो व्हेनेवर यू फाइंड अ क्यूब ऑलवेज रिमेंबर, अगर साइड लेंथ L है तो फेस डायगोनल भी L√2, बॉडी डायगोनल भी L√3, एंड अगर यहाँ तो डिस्टेंस लेंथ B दिया हुआ है तो B√2 एंड B√3। अब हमारे लिए R क्या होगा, हियर R विल बी बॉडी डायगोनल B√3 का आधा, विल बी बॉडी डायगोनल B√3 का आधा, क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस ही है ना, तो बी B√3/2। पुटिंग इट हियर, व्हाट यू गेट इज V इज इक्वल टू 8 टाइम्स KQ अपॉन B√3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 16 KQ अपॉन B√3। अब K को 1/4π0 रख दो, तो 16Q अपॉन B√3 एज इट इज, K इज 1/4π0 एंड सिंप्लीफाई करें तो 16, so this will be 4Q upon 4Q upon √3/ε0 b। ये हो गया, either you put it this way or put it this way, both are the same। okay, so that's नंबर 2.13। इसमें मेन हाईलाइट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आपको मालूम है, पोटेंशियल का यू नो द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, ओके, ऑल साइड्स इक्वल टू 8 टाइम्स। व्हाट वाज मेन was emphasizing or reminding you of the cube, the side length and the body diagonal. That's 2.13. Next we go for exercise का 2.14। वीडियो पॉज करके go for the question, read the question and return back। Now 2.14 says that there are two charges, Q1 and Q2, having values Q1 is given as 1.5 microcoulomb, that is 1.5 into 10 raised to -6 coulomb, and Q2 equal to 2.5 microcoulomb, that is 2.5 into 10 raised to -6 coulomb. These are the two charges. They are placed at a distance r, where r is given 30 centimeter, यानी कि 0.3 मीटर, ये दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में दो पार्ट है कि दिस इज द two charge system, we have to find electric intensity and potential at the midpoint, let's say point P. So what we have to do is first at point P, which is the midpoint, point P which is midpoint, यहाँ पे हमें चाहिए resultant electric field and resultant potential, दो चीजें चाहिए। potential electric field at point P which is the midpoint, अब midpoint है तो ऑब्वियस है ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, लेट्स से E1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R/2 का स्क्वायर एट पॉइंट P हो गया। E2 विल बी इक्वल टू K ड्यू टू Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, 10 में न्यूटन पर कूलम, 10 में न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, द वैल्यू। नाउ this is a positive charge, तो electric field intensity will be directed away E1 bar at point P। ये भी positive charge है, तो electric field will be directed away from Q2 at point P। So at point P E1 bar due to Q1 and E2 bar due to Q2 both are in opposite direction, as E1 bar and E2 bar are in mutually opposite directions at P, therefore resultant क्या होगा, E will be equal to E1 minus E2, दोनों opposite है इसलिए माइनस करना है, एंड जो बड़ा है उसको माइनस छोटा करना है। We can clearly say Q1 is smaller than Q2, तो here Q2 will be bigger, यानी E2 will be bigger, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, E2 minus E1, E2 is bigger therefore E2 minus E1, एंड ये आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड डायरेक्शन कौन सा, तो वी नो बिगर वन डोमिनेट्स, तो डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन ऑफ E bar will be from Q2 to Q1, क्योंकि बिगर वन डोमिनेट्स तो Q2 का E2 will dominate, वही डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट का। ओके, फ्रॉम Q2 to Q1, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेक्स्ट वी गो फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आएगा, उसके ना पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी हो तो सिंपली ऐड करना, उसका तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 ड्यू टू 1 KQ1 अपॉन R/2 ड्यू टू 2 KQ2 अपॉन डिस्टेंस R/2, ये हो गया V। ओके,
तो ये हो गया सम का एक पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में इसमें पूछा हुआ है, इन द सेकंड पार्ट यू आर सेड दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द टू एट द मिड पॉइंट, नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द टू एट द मिड पॉइंट, यानी ये Q1 ये Q2 दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, एंड इस परपेंडिकुलर पे पॉइंट सपोज यहाँ ले लेते हैं Q विच इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। Q लेंगे तो फिर चार्ट क्या था, चलो इसको P डैश बोल देते हैं, P डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, क्वेश्चन सेम E and V एट पॉइंट P डैश विच इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ बात तो वही की वही है, ये R/2 यानी 15 हुआ, ये भी 15 है, टोटल 30 है ना, तो ये 15 हो गया, ये 10 है, तो यू गेट द डिस्टेंस R1, पाइथागोरस ऑफ दीस टू, डिस्टेंस R2, पाइथागोरस ऑफ दीस टू, यानी दोनों R1 R2 अब इक्वल होंगे, R1 R2 विल बी इक्वल। एंड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 E1 विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, वही फॉर्मूला सेम टू सेम, पर R/2 नहीं लिखते क्योंकि अब ये डायगोनल है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ जाएगा R1 न्यूटन पर कूलम। देन सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 एट पॉइंट P डैश Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। R1 R2 क्या होगा, तो R1 विल बी इक्वल टू R2 इक्वल टू रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दिस मच सेंटीमीटर एंड मीटर में ले जाना है, तो ये हो गया, E2 भी आ गया। फिर क्या करेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 को याद करते हैं, यही टाइप का सम हमने किया हुआ है वहां पे। E1 का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q1 क्योंकि Q1 इज पॉजिटिव, तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q1 यानी ये डायरेक्शन हो गया E1 बार का। फिर इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्टेड वो भी पॉजिटिव, इसका E2 बार हो जाएगा। ओके, ये दोनों का डायरेक्शन ही हो गया। अब क्या करेंगे, याद होगा यू हैव टू डिवाइड इनटू कंपोनेंट्स, E1 अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा E1 cos थीटा 1 cos थीटा 1 एंड ये हो जाएगा E1 sin थीटा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी आप दोनों एंगल सेम ही आने वाले, इससे इसको थीटा ही बोलते तो भी चलेगा, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा एंड ये हो जाएगा E2 sin थीटा। इट इज सिमिलर टू दैट वी हैड डन इन चैप्टर नंबर 1। अब इन दोनों का E1 sin थीटा E1 E2 sin थीटा सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट x कंपोनेंट y कंपोनेंट, दोनों का रिजल्ट वेक्टर तैयार हो गया आपका। ओके, फिर बाद में पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल वही सेम टू सेम मेथड, R1 R2 तो दोनों सेम है, यू कैन कैलकुलेट इट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो क्या करना है, ऑन द लाइन हो तो क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट बीच में दिया, इट माइट बी गिवन आउटसाइड आल्सो बट सेम मेथड फॉलोज, E1 E2 ढूंढ लो वो पॉइंट पे, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इट माइट बी अ वेरिएशन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज भी हो, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में, सिंपली ऐड करना है। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस कैन कम एंड ये न्यूमेरिकल्स आर लिटिल बिट आउट ऑफ आवर बोर्ड, लोकल बोर्ड, सो इसको हम लोग JEE नीट का सम बोल सकते हैं। ओके, ये 3 इलस्ट्रेशन से जो एक्सरसाइज के सम से जो मुझे कराने थे खास, इससे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। नाउ यू हैव टू जस्ट वर्क इट आउट, असाइनमेंट विल फॉलो वेरी सून। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 ऑफिशियली क्लोज कर रहा हूँ, फिर बाद में विल गो ओवर टू चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द नेक्स्ट वीक।